Good morning, students. In this video lecture, we are starting the new chapter that is transport in plant. इस टाइटल का मीनिंग ये है कि प्लांट में मटेरियल किस तरह से ट्रांसपोर्ट होते हैं। देखिए, प्लांट में एनिमल्स की तरह वेल डिफाइंड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है। जिस तरह एनिमल्स में हार्ट है, वस्कुलर सिस्टम्स है, डिफरेंट वेन्स हैं, आर्टेरीज हैं जो बॉडी फ्लूइड को सर्कुलेट करते हैं, इस तरह से प्लांट में कोई मैकेनिज्म नहीं है। प्लांट्स में सिर्फ दो ट्यूब्स होती हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम कंडक्ट्स द वाटर एंड फ्लोएम कंडक्ट्स द फूड। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्लांट बॉडी में कौन से मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द प्लांट बॉडी water is transported, and all we know that water is present into the soil. Second thing, some inorganic nutrients like calcium, magnesium, ions are transported in the plant body. Some organic nutrients such as carbohydrate, protein, fat, so these organic nutrients are also transported from one place to another place in the plant body. And some plant growth regulators, you know that these plant growth regulators are synthesized in one place, but they are transported into another place which is distantly located. Water and inorganic nutrient in the plant body are transported through the xylem, and transportation through the xylem is one of the unidirectional process. Unidirectional means रूट जब वाटर एब्जॉर्ब करती है तो वाटर सिर्फ ऊपर जाएगा, ऊपर से वापस नीचे बैक नहीं आ सकता है। इसीलिए जाइलम के कंडक्शन को यूनिडायरेक्शनल कंडक्शन कहा जाएगा। At the same time, organic nutrients and plant growth regulator are transported through the another vascular tissue, that is phloem, and the transportation of phloem is multi-direction. Okay, so these are the xylem and phloem which form the vascular tissue, and this vascular tissue help in transportation in plant. Next thing, let us consider, this is a general angiospermic plant body which consisting on three vegetative organs. Underground organ is called as root, this is aerial part, that is stem, and the most important vegetative organ is leaf. Okay, अब यहाँ पे देखिए कि रूट और लीफ ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, और इन दोनों को कनेक्ट किया है स्टेम ने। ब्रांचेस जो होती हैं वो भी स्टेम का ही पार्ट होती है, लेटरल ब्रांचेस। ओके, तो रूट इज प्रेजेंट इन द सॉइल एंड रूट एब्जॉर्ब द वाटर। रूट जो है वो वाटर को सॉइल से अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगी। सो दिस रूट विच फर्स्ट टाइम एब्जॉर्ब द वाटर, रूट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ वाटर। लेकिन ऐसा नहीं है कि रूट ने सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब किया तो सारा का सारा वाटर रूट में ही रहेगा। जाइलम के थ्रू ये वाटर लीफ तक जा पहुंचता है, क्योंकि वाटर का जो नीड है, वाटर का जरूरत लीफ को है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए। तो जो ऑर्गन नीडी ऑर्गन होता है, नीडी यानी जिसको जरूरत होती है, उसे कहते हैं सिंक। Root act as a source of water and leaf act as a sink of water. At the same time, leaf perform the process of photosynthesis and accumulate the organic nutrients, that is organic food material, in the form of glucose. Then it is compact and form the macromolecule, that is starch, sucrose, and so on. So food is accumulated inside the leaf. That's why leaf act as a source
ऑफ फूड। लेकिन जैसा मैंने रूट के बारे में बताया, सेम वही प्रिंसिपल लीफ पर के ऊपर भी अप्लाई हो सकता है। लीफ ने अपने अंदर फूड अक्यूमुलेट जरूर किया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि लीफ को ही फूड की जरूरत है। फूड की जरूरत स्टेम को भी है, ब्रांचेस को भी है, फ्लावर्स को भी है, फ्रूट्स को भी है, और लीफ से सबसे दूर जो ऑर्गन है रूट, रूट को भी फूड मटेरियल की जरूरत होती है। सो दिस फूड इज कंडक्टेड थ्रू द फ्लोएम फ्रॉम लीफ अप टू द रूट, सो दैट in this case root act as a sink of food. Because root cannot perform the process of photosynthesis, it is underground, root is not directly in contact of light and carbon dioxide, and even root cannot contain the chlorophyll molecule which is very essential for the photosynthesis. तो जहां पे रूट सोर्स ऑफ वाटर है, वहीं पे रूट सिंक ऑफ फूड कहलाती है। लीफ सोर्स ऑफ फूड है, तो वही लीफ सिंक ऑफ वाटर कहलाता है। सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स which are connected by the stem, and inside the stem vascular tissue, that is xylem and phloem, are present, which help the conduction of water, inorganic nutrient, organic nutrient, and plant growth regulators. Okay, so this is all about the basic. Now root consisting on 4 different parts: root cap, region of meristematic activity, region of elongation, and region of maturation. All you know that root hairs are present on the region of maturation, and these root hair absorb the water. तो वाटर किस तरह से एब्जॉर्ब होता है, इसके लिए मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए हमको रूट का ट्रांसवर्स सेक्शन देखना पड़ेगा. सो लेट अस कंसीडर दिस इज द रफ डायग्राम फॉर ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द रूट. This is epidermis, outermost single layer of the parenchyma cells. Just below the epidermis, some spherical loosely arranged cells are present. These loosely arranged parenchymatous cells form the cortex. Inner layer of the cortex is made up of flat cells. This inner cortex is called as endodermis. Inside the endodermis, pericycle cells are present, and these pericycle encloses xylem and phloem, that is vascular tissue. Okay. Now this is the transverse section of region of maturation. Some of the epidermal cell elongate themselves. For example, this epidermal cell get elongated. The extended part of the epidermal cell is very thin and delicate. This extended part of the epidermal cell is called as root hair. Okay. Now suppose water molecules are present over here. देखिए सॉइल में जो वाटर एब्जॉर्ब होता है, रूट जिसको एब्जॉर्ब करती है, वो सिर्फ कैपिलरी वाटर होता है. वाटर के डिफरेंट टाइप्स हैं: रन अवे वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर, मिक्स्ड वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, आयोनिक वाटर एंड कैपिलरी वाटर. हमको इसकी कंप्लीट डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन आपको ये पॉइंट याद रखना है कि रूट कैन एब्जॉर्ब ओनली कैपिलरी टाइप ऑफ वाटर. रूट कौन सा टाइप का वाटर एब्जॉर्व करती है? कैपिलरी वाटर एब्जॉर्व करती है. सो दीज आर सपोज वाटर मॉलिक्यूल्स. ओके, नाउ हाउ दिस वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर इन द रूट? फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस मॉलिक्यूल ऑफ वाटर गेट डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ रूट हेयर. अभी जो रूट हेयर है, ये एपिडर्मल सेल का एक्सटेंशन है. सेल वॉल से बना हुआ है. सेल वॉल से नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से नीचे साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है वैक्यूल. वैक्यूल की बाउंड्री को कहते हैं टोनोप्लास्ट. तो स्टेप वाइज अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल सेल वॉल के ऊपर अटैच होगा, फिर सेल वॉल से नीचे ट्रांसपोर्ट होगा सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में. तो इसको रूट हेयर को जूम करता हूं यहां पर. Suppose this is root hair
दिस इज सेल वॉल, येलो कलर का बाउंड्री कौन हो गया, सेल वॉल, और येलो बाउंड्री के अंदर जो पिंक लाइन से ड्रॉ किया, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. Plasma membrane surround the cytoplasm, and inside the cytoplasm, let us consider this is vacuole which store the water. Okay, and this is suppose water molecule. This is water molecule. तो वाटर मॉलिक्यूल पहले सेल वॉल पे डिपॉजिट होगा, फिर सेल वॉल को क्रॉस करके सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में आएगा, फिर वाटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, फिर टोनोप्लास्ट को क्रॉस करके वैक्यूल में जाएगा. तो ये मैकेनिज्म को डिटेल में लर्न करने के लिए हमको कुछ फिजिकल प्रोसेसेस स्टडी करनी पड़ेगी, प्लांट वाटर रिलेशंस स्टडी करने पड़ेंगे. दिस फिजिकल प्रोसेस इंक्लूडेड imbibition, passive absorption, means passive transport and active transport. Passive transport included diffusion and osmosis. Diffusion are of two types, simple diffusion, facilitated diffusion. तो ये सब हम डिटेल स्टडी कर रहे हैं क्योंकि ये जो चैप्टर है बच्चों, ये बहुत ज्यादा टेक्निकल चैप्टर है. इसमें से बहुत ज्यादा क्रिटिकल क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं. तो जब हम इसको एकदम जीरो लेवल से, बेसिक से बिल्डअप करेंगे हाईएस्ट लेवल तक, तब ये हमारे माइंड में बहुत अच्छे से इसके कंसेप्ट बैठते हैं और इसको बार बार आपको रिवाइज भी करना है. ओके, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसका नोट्स आपके पास में लिख लीजिए. ओके, नाउ नेक्स्ट पेज. So we are dealing with the physical processes which are involved in the transportation. So transport in plant are mainly categorized into two types. The first type is passive transport and second type is active transport. दोनों में डिफरेंसेस बहुत सारे हैं, लेकिन एक मेजर डिफरेंस आपको याद रखना है. एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज अकम्पाइंड बाय द एक्सपेंस ऑफ एटीपी. एनर्जी मिलने के बाद में ही मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन होगा, ऐसे ट्रांसपोर्ट को एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं. एंड इट इज वन ऑफ द रैपिड प्रोसेस, फास्ट प्रोसेस रहेगा. पैसिव ट्रांसपोर्ट is taking place without involvement of ATP. No ATP is required in passive transport. दूसरा एक और डिफरेंसेस याद रख लीजिए इसी के साथ साथ कि in case of passive transport, molecules are transported or molecules are moving from their high concentration to low concentration. देखिए, concentration का मतलब होता है क्वांटिटी. आपके पास में दो रीजन्स हैं, दोनों कनेक्टेड एक दूसरे से. एक रीजन में मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, दूसरे रीजन में उन्हीं मॉलिक्यूल की क्वांटिटी कम है. तो मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज स्टार्ट्स टू मूविंग फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन. एंड दिस टाइप ऑफ मूवमेंट फ्रॉम हाई टू लो, मॉलिक्यूल जा रहा है, कहां जा रहा है, लो की तरफ. तो दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड एज downhill process. Okay, in contradictory to this, in case of active transport, molecules are always moving from their low concentration to high concentration. यहां पे मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट अपोजिट होता है. कम क्वांटिटी वाले मॉलिक्यूल्स ज्यादा क्वांटिटी की तरफ मूव होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में मूव होंगे. क्यों? क्योंकि उनको एनर्जी मिल चुकी है, उनको एटीपी मिल गया है. एंड दिस टाइप ऑफ मूवमेंट फ्रॉम लो टू हाई, मॉलिक्यूल जा कहां पर रहे हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ. सो इट इज कॉल्ड एज अपहिल ट्रांसपोर्ट. ओके, तो ये बेसिक है. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पैसिव ट्रांसपोर्ट. पैसिव ट्रांसपोर्ट में डिफरेंट टाइप्स हैं. सबसे पहली टाइप हम यहां पे ले लेते हैं इम्बिबिशन, और इसको पूरे डिटेल में हम स्टडी कर लेंगे. हो सकता है कि एनसीईआरटी बुक का जो सीक्वेंस है वो हमारे सीक्वेंस से आगे पीछे हो जाए, लेकिन कंसेप्ट हमको एकदम बेसिक से ही लेकर चलना है. इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि आप ये स्टेप को फॉलो करें जो मैं आपको वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन कर रहा हूं.
तो फर्स्ट फिजिकल प्रोसेस इज imbibition, and imbibition belongs to the passive transport. Means in the process of imbibition, ATP is not required. In the process of imbibition, molecules are moving in downhill direction, that is from high concentration to the low concentration. So what is imbibition actually? Imbibition is the adsorptive process. It is adsorption of लिक्विड, यहां पे स्पेसिफिकली मैं वाटर नहीं लिखा हूं, लिक्विड लिखा हूं, कोई भी लिक्विड आ सकता है. तो एडसॉर्प्शन ऑफ लिक्विड ऑन हाइड्रोफिलिक सरफेस. विच सरफेस? हाइड्रोफिलिक सरफेस ऑफ सब्सटेंस is called as imbibition. Point number 1. Point number 2, imbibition process never form the solution inside the substance. ये दोनों भी चीजें मैं आपको आराम से एक्सप्लेन करता हूं. मान लीजिए कि आपके पास में एक बकेट है, उस बकेट में आपने फुल वाटर लिया है, like this. Suppose this is bucket or any container which is filled with water. अब आपके पास में 3 सब्सटेंसेस हैं. यहां पे अपन ने लिखा है सब्सटेंस. तो सब्सटेंसेस आर ऑफ 3 टाइप. फर्स्ट सब्सटेंस है मान लीजिए आपके पास स्पंज. ओके. सेकंड सब्सटेंस है आपके पास में वुड. एंड थर्ड सब्सटेंस आपके पास में बच्चों आयरन. आयरन और प्लास्टिक. स्पंज का शेप एक ब्लॉक फॉर्म में है इस तरह से. फॉर एग्जांपल वुडन ब्लॉक है और एक आयरन या प्लास्टिक ब्लॉक है. इस तरीके से ब्लॉक्स आपके पास में. आपने पहले स्पंज को वाटर में डिप किया, 2-3 घंटे के बाद निकाला और उसको बीच में से कट किया, तो आप देखेंगे कि स्पंज ने पूरा वाटर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया. क्योंकि स्पंज के अंदर पोर्स होते हैं, स्पंज में कैपिलरीज होती हैं. तो कैपिलरीज एक्शन की वजह से स्पंज ने कौन सा प्रोसेस परफॉर्म किया? एब्सॉर्प्शन. वाटर अंदर तक चला गया ना. So this process is called as AB, that is absorption. Just a minute. Sponge perform the process absorption. Okay. But at the same time, अब आप वुडन ब्लॉक को वाटर के अंदर डिप कीजिए, 2-3 घंटे के बाद उसको निकालिए और बीच में से उसके 2 इक्वल पार्ट कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि वाटर वुडन ब्लॉक के अंदर तक पेनिट्रेट नहीं हुआ. यानी वुडन ब्लॉक ने वाटर का एब्सॉर्प्शन नहीं किया, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल वुड की सरफेस पर बहुत अच्छी तरीके से बाइंड हो जाएंगे. आप कपड़े से साफ कीजिए, हाथ से साफ कीजिए, वाटर मॉलिक्यूल इजीली सरफेस पर से नहीं निकलेंगे. क्योंकि वुड का जो सरफेस है वो हाइड्रोफिलिक सरफेस है और हाइड्रोफिलिक सरफेस ने वाटर मॉलिक्यूल को स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से, कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया. सो दिस प्रोसेस इन विच वाटर मॉलिक्यूल एडजॉर्ब ऑन द सरफेस बट नॉट पेनिट्रेट इनसाइड इज कॉल्ड एज एडसॉर्प्शन. तो वुडन ब्लॉक परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ AD, दैट इज एडसॉर्प्शन. अब डेफिनेशन पर आ जाइए. व्हाट इज इम्बिबिशन? एडसॉर्प्शन ऑफ लिक्विड ऑन हाइड्रोफिलिक सरफेस ऑफ द सब्सटेंस. अब समझ में आ रही बात? तो इट इज कॉल्ड एज इम्बिबिशन. ओके. नाउ इन केस ऑफ इम्बिबिशन, द सॉलिड that is suppose wooden block, this solid is called as imbibent, and the liquid molecule which attach on the surface of solid, मान लीजिए ये वाटर ड्रॉप्स हैं, सॉलिड सरफेस पर अटैच हो चुके हैं, तो दिस वाटर मॉलिक्यूल दैट इज लिक्विड इज कॉल्ड एज इम्बिबेट. ओके. सो इम्बिबेट is liquid, imbibent is a solid. Okay. Now third thing, third example is iron block और plastic block. आपके पास में आयरन ब्लॉक है या प्लास्टिक ब्लॉक है, आप उसको वाटर में डिप कीजिए, 2 से 3 आवर्स के बाद निकाल लीजिए, बीच में से कट कीजिए, आप देखेंगे कि वाटर अंदर तक पेनिट्रेट नहीं हुआ. आप अगर उस प्लास्टिक ब्लॉक का या आयरन ब्लॉक का सरफेस हाथ से रब करेंगे या कपड़े से साफ करेंगे,
इजीली वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे और सरफेस कंप्लीटली ड्राई हो जाएगा। इट मींस दैट वो जो वुडन आयरन ब्लॉक है उसने ना ही वाटर अंदर तक एब्जॉर्व किया और ना ही वाटर मॉलिक्यूल सरफेस पर टाइटली बाइंड हुए, मींस नाइदर एडसॉर्प्शन नॉर एब्सॉर्प्शन। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। तो एडसॉर्प्शन ऑफ लिक्विड इज टेकिंग प्लेस ऑन द हाइड्रोफिलिक सरफेसेस ऑफ द सब्सटेंस, और अंदर पेनिट्रेट नहीं हुआ मतलब लिक्विड या फिर सॉल्यूशन फॉर्म नहीं किया। सो एडसॉर्प्शन ऑफ लिक्विड ऑन हाइड्रोफिलिक सरफेस विदाउट फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज इम्बिबिशन। अब हम इम्बिबिशन से रिलेटेड कुछ बेसिक फिनोमेना स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट वन इज कैरेक्टरिस्टिक। ओके, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब कि इम्बिबिशन प्रोसेस अगर होगा तो सब्सटेंस में कौन से चेंजेस हो पाएंगे। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इम्बिबिशन इज रिलेटेड टू द वॉल्यूम। ओके, नाउ व्हाट अबाउट वॉल्यूम? क्या होता है कि रेनी सीजन में वुडन डोर्स यानी जो लकड़े के दरवाजे होते हैं या वुडन विंडोज होती हैं, ये जैम हो जाती है। आपको जोर जोर से दरवाजे बंद करने पड़ते हैं, इजीली बंद नहीं होता। क्यों? क्योंकि इम्बिबिशन की वजह से वो जो वुडन सरफेसेस स्वेल हो चुकी हैं। तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ या कांस्टेंट है? ऑफ कोर्स वॉल्यूम इज इंक्रीजेस। सो इम्बिबिशन कॉज द इंक्रीज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम increases due to the process of imbibition. Second characteristic of imbibition is pressure. Pressure of the solid surface. ये वुडन ब्लॉक है, इसके ऊपर वाटर मॉलिक्यूल डिपॉजिट हो चुके हैं, तो जो वुडन ब्लॉक है उसका वॉल्यूम तो बढ़ ही जाएगा और वुडन ब्लॉक के सरफेस के ऊपर एक एडिशनल प्रेशर क्रिएट होगा, यानी प्रेशर इंक्रीज होगा। सो यू कैन से दैट due to imbibition volume increases and pressure is also increases. Okay, so this is all about the characteristics of imbibition. Third important character is heat of hydration. Now this is one of the important characteristic, heat of hydration. Let us look with this diagram. When a liquid molecule get imbibe on the surface of solid at the time of formation of covalent bond between water and surface of wood, a small amount of heat is liberated in the form of kinetic energy. So this heat which release out at the time of imbibition, this release of heat is in the form of kinetic energy. So this kinetic energy which releases is called as heat of hydration. इसके एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आपने कैल्शियम कार्बोनेट के ब्लॉक्स देखे होंगे या फिर जो चूना होता है सादा जिससे घर को कलर करते हैं, अगर उस चूने के ब्लॉक को आपने वाटर में इमर्स कर दिया तो उसमें से एकदम से धुआं निकलता है। वो धुआं नहीं है, वो हीट है, and that heat is releasing when water molecule deposited on the surface of solid is called as heat of hydration. Heat of hydration का एक और एग्जाम्पल है kneading of wheat grain. Kneading of wheat grain नहीं, इसको फ्लोर कहेंगे। यानी रोटी बनाने के लिए जब आप आटा गूंथते हैं तो उसे नीडिंग ऑफ व्हीट फ्लोर कहेंगे। तो आपका जो फिंगर्स है उस पर स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट महसूस होती है, एंड दैट हीट इज कॉल्ड एज हीट ऑफ हाइड्रेशन. So these are the three characteristics of imbibition. Now we are discussing about the factor affecting on imbibition. Imbibition पर कौन से factors affect कर सकते हैं? Factors affecting imbibition. ये इतना डिटेल में स्टडी करना बहुत ज्यादा कंपलसरी अपने को जरूरी है, इसलिए मैं
इम्बिबिशन के बारे में इतने पॉइंट्स दे रहा हूं। हालांकि एनसीईआरटी के अंदर उसने शॉर्ट में निपट लिया ये टॉपिक, पर हमको इसके पूरे कंसेप्ट डिटेल में पता होना जरूरी है। सो विच फैक्टर्स आर अफेक्टिंग ऑन द रेट ऑफ इम्बिबिशन? द फर्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। टेम्परेचर, ओके। सो व्हाट अबाउट टेम्परेचर? एग्जाम्पल, आपने वुडन ब्लॉक को जिस बकेट में डिप किया, मान लीजिए कि उस बकेट में वाटर हाई टेम्परेचर पर प्रेजेंट है, गर्म पानी प्रेजेंट है, तो वो हॉट वाटर के मॉलिक्यूल एकदम स्पीड में टाइटली अटैच होते चले जाएंगे। इट मींस दैट रेट ऑफ इम्बिबिशन इंक्रीजेस इन द हॉट वाटर एज कंपेयर टू द कोल्ड वाटर। सो इफ टेम्परेचर इज इंक्रीजेस, देन there is increase in rate of imbibition, means temperature is directly proportional to the rate of imbibition. Second thing, presence of solute. So as many as solute are present, आपके पास में जो बकेट है, आपने उस बकेट में वुडन ब्लॉक तो इमर्स किया, उसके साथ साथ आपने कुछ 4-5 ऐसे ब्लॉक भी इमर्स किए जिनमें इम्बिबिशन कैपेसिटी है, तो वाटर मॉलिक्यूल उन ब्लॉक्स पर भी स्ट्राइक होंगे और वुडन ब्लॉक पर भी स्ट्राइक होंगे। यानी पहले सिर्फ अकेला वुडन ब्लॉक था, तो सभी वाटर मॉलिक्यूल एक वुडन ब्लॉक की तरफ माइग्रेट हुए। अब अलग अलग हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल सबकी तरफ मूव होंगे। तो आप लोग सोच सकते हैं कि रेट ऑफ इम्बिबिशन इस एग्जांपल में इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा वुडन ब्लॉक का। तो इन केस ऑफ presence of different kinds of solute, rate of imbibition decreases। मान लीजिए 100 वाटर मॉलिक्यूल्स है, एक वुडन ब्लॉक है, 100 के 100 वुडन ब्लॉक पर आएंगे, लेकिन 2-3 वुडन ब्लॉक है तो कुछ 20-30 एक वुडन ब्लॉक पर, 20-30 दूसरे, मतलब डिवाइड हो जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल। सो इफ मैनी सोल्यूट्स आर प्रेजेंट, देन रेट ऑफ इम्बिबिशन डिक्रीजेस। सो कैपिटल आर फॉर rate of imbibition and solute inversely proportional to each other. So these factors are mostly affect the rate of imbibition. Third one is presence of moisture will increase the rate of imbibition. तो ये आप कैरेक्टरिस्टिक्स की अलग लिस्ट बनाएंगे, फैक्टर अफेक्टिंग की एक अलग लिस्ट बनाएंगे। अब हम नेक्स्ट स्टडी करने जा रहे हैं। Next criteria of imbibition is significance of imbibition, यानी imbibition से क्या क्या बेनिफिट होते हैं। बच्चों ये जो पॉइंट्स अब मैं ले रहा हूं, ये हमेशा याद रखिएगा कि when root hair absorb the water, let us consider this is root hair cell. When water molecule get strike on the surface of root hair, this process is imbibition. So imbibition is first process in water absorption. Imbibition is first process in water absorption by root hairs. Okay? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल पहले सेल वॉल पर डिपॉजिट होंगे, स्ट्राइक होंगे, और फिर क्रॉस होकर के अंदर जाएंगे, मतलब डिफ्यूजन, और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे, जिसको आप ऑस्मोसिस कह सकते हैं। तो फर्स्ट प्रोसेस इन एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर इज इम्बिबिशन। दिस इज वन सिग्निफिकेंस। अनदर सिग्निफिकेंस इज इन द प्रोसेस ऑफ सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन, जब आप सीड को सॉइल में सो करते हैं और वाटर सप्लाई करते हैं, तो सीड कोट सबसे पहले वाटर को अपनी सरफेस पर डिपॉजिट करता है, मतलब इम्बिबिशन करता है, और इम्बिबिशन की वजह से सीड का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। क्योंकि हमने यहां पे देखे थे कैरेक्टरिस्टिक्स में कि इम्बिबिशन इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। एग्जांपल, आपको घर पे चने बनाना है या मटर के जो दाने होते हैं वो दूसरे दिन बनाना है, तो आप रात भर उन ग्रेन्स को पानी में सोख कर देते हैं, मतलब भिगाने रख देते हैं। सुबह दूसरे दिन आप देखेंगे तो जो चने थे उनका वॉल्यूम बढ़ चुका है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इम्बिबिशन। सो इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सीड
must be required for germination process. तो first process in seed germination is imbibition. Next step or next significance which is given in your NCERT book. Prehistoric man, पुराने जमाने में क्या होता था कि अगर लोगों को वुड की जरूरत है, क्योंकि उनका बहुत सारा काम वुड पर चलता था, घर बनाना है तो वुड से बनाए, ऐसे कॉलम्स वगैरह बिल्डिंग्स प्रेजेंट नहीं थी उस समय, आग जलाना है तो वुड का इस्तेमाल करते थे वो लोग, और बहुत सारे पर्पसेस के लिए वुड यूज होती थी। वुड ट्री से निकलती है और ट्री चट्टानों के बीच में अगर रहता तो प्री हिस्टोरिक लोग क्या करते कि वाटर उस ट्री के स्टेम के ऊपर सप्लाई करते थे, जिसकी वजह से स्टेम का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, रॉक्स क्रैक हो गए, बोल्डर्स क्रैक हो गए, तो वो बोल्डर्स को भी यूज करने ले जा सकते हैं और वुड को भी यूज करने ले जा सकते हैं। डुअल यूज है, बुक में बोल्डर्स का दिया हुआ है लेकिन वुड भी यूज कर सकते हैं। ओके, सो बोल्डर्स फ्रॉम रॉक्स, दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इम्बिबिशन। नेक्स्ट नेचुरल सिग्निफिकेंस, ये आर्टिफिशियल सिग्निफिकेंस हो गया, मतलब ये एप्लीकेशन हो गई इम्बिबिशन की। अब नेक्स्ट नेचुरल सिग्निफिकेंस ये है कि ओव्यूल इज राइपेंड इनटू सीड, या सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हैं कि ओव्यूल इज कन्वर्टेड इनटू सीड बिकॉज वाटर एंटर्स इन द ओव्यूल, first of all water deposited on the micropyle, so this process is also imbibition. So ovule का conversion seed में होना ये भी imbibition का एक significance है। तो ये सारे point imbibition से related हो गए, आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिए। imbibition pressure को metric potential भी कह सकते हैं, यानी देखिए ये रूट हेयर्स के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल डिपॉजिट हुआ तो रूट हेयर पे प्रेशर बढ़ जाएगा, यहाँ पे हमने देखा वॉल्यूम इंक्रीजेस, प्रेशर इज आल्सो इंक्रीजेस। सो प्रेशर क्रिएटेड ऑन द सेल वॉल ड्यू टू इम्बिबिशन इज कॉल्ड एज मैट्रिक पोटेंशियल, और मैट्रिक पोटेंशियल वाटर पोटेंशियल का एक कंपोनेंट है जिसे निग्लेक्ट किया जाता है। वाटर पोटेंशियल का फार्मूला जो होता है साई W इज इक्वल टू साई P मींस प्रेशर पोटेंशियल प्लस सोल्यूट पोटेंशियल प्लस मैट्रिक पोटेंशियल, लेकिन मैट्रिक पोटेंशियल को हम लोग निग्लेक्ट करेंगे। उसका रीजन में उसी वक्त आपको बताऊंगा कि व्हाई मैट्रिक पोटेंशियल इज इग्नोर्ड बाय व्हेन यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द वाटर पोटेंशियल। ओके, नेक्स्ट थिंग, ये सब देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए आपके पास में। ओके, we are using some new page. The next type of, हम देखिए स्टार्ट से टॉपिक कैसा पढ़ रहे, ट्रांसपोर्ट के दो टाइप्स, पैसिव एक्टिव। पैसिव के कैरेक्टरिस्टिक, एक्टिव के कैरेक्टरिस्टिक। पैसिव में अब टाइप शुरू किया हमने, इम्बिबिशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्बिबिशन, फैक्टर अफेक्टिंग इम्बिबिशन, सिग्निफिकेंस ऑफ इम्बिबिशन। सो इम्बिबिशन इज द फर्स्ट टाइप बिलोंग्स टू पैसिव ट्रांसपोर्ट। नाउ सेकंड टाइप बिलोंग टू पैसिव ट्रांसपोर्ट is called as diffusion, which is one of the most important thing. Many times questions are asked from this topic, diffusion. So what is diffusion? Diffusion is movement of molecules from higher concentration to the region of lower concentration. Simple, it is called as diffusion. So molecules, suppose this is a container, okay, and this is container number B, container number A, container number B. Container number A contain 100 molecules, okay, and container number B, suppose it contain only suppose 50 molecules, 50 molecules of the same substance. जो सब्सटेंस कंटेनर ए में है वही सब्सटेंस कंटेनर बी में होना चाहिए। अगर कंटेनर ए में आपने वाटर फिल किया तो कंटेनर बी में भी वाटर फिल कीजिए। कंटेनर ए में कैरोसिन है तो कंटेनर बी में भी कैरोसिन ही फिल कीजिए, अगर आपको डिफ्यूजन स्टडी करना है तो। नाउ दिस टू कंटेनर आर इंटरकनेक्टेड विथ अ कॉमन पाइपलाइन। व्हाट इज योर आइडिया?
अबाउट द फ्लोइंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के फ्लोइंग की डायरेक्शन आप कैसी देना चाहेंगे, molecules are moving from which container to which container? Of course, your answer is correct. Molecules are moving from container A to container B. Why? Because in container A, the number of molecules are more. कंटेनर ए में मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी ज्यादा है, कंटेनर बी में मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी कम है, और क्वांटिटी को ही कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं. मींस आई कैन राइट हियर दैट कंटेनर ए हैविंग high concentration means high quantity and container B having low concentration means low quantity of the same type of molecules. So molecules are moving from high concentration to low concentration. अब जिन molecules की हम यहाँ बात कर रहे हैं वो molecule गैस भी हो सकते हैं, वो molecule liquid के भी हो सकते हैं और solid particles भी हो सकते हैं. Solid थोड़ा एक exceptional case है जिसके बारे में अपन एक्सप्लेनेशन देखेंगे. हाँ, तो गैस हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूव कर जाएगी, लिक्विड हाई टू लो मूव कर जाएगा, लेकिन सॉलिड में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है कि सॉलिड मॉलिक्यूल खुद होकर के हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूव नहीं करते. इसीलिए आपके एनसीईआरटी बुक में जो सेंटेंस दिया हुआ है कि डिफ्यूजन इन सॉलिड हो सकता है बट डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड नहीं हो सकता. आप थोड़ी देर के लिए सपोज कीजिए कि कंटेनर ए में मैं फुल भर दिया शुगर मॉलिक्यूल से, शुगर क्रिस्टल से भरा हुआ है, और कंटेनर बी शुगर पार्टिकल से आधा फिलअप है, दोनों को कॉमन पाइपलाइन से कनेक्ट कर दिया. तो जो शुगर है वो कंटेनर ए टू कंटेनर बी मॉलिक्यूल मूव नहीं होंगे, शुगर के क्रिस्टल मूव नहीं होंगे. मींस डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इज वेरी रेयर. कुछ एक्सेप्शनल केसेस उसमें हैं, इसलिए मैंने सॉलिड को क्या कर दिया हूं, स्टार. तो सॉलिड खुद होकर के डिफ्यूजन परफॉर्म नहीं कर सकते, लिक्विड और गैस अपने डिफ्यूजन परफॉर्म कर सकती है. ओके, सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूजन. नाउ दिस टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ डिफ्यूजन फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर नो एटीपी. नो एटीपी इज रिक्वायर इन डिफ्यूजन. अब हम डिफ्यूजन स्टडी कर रहे हैं तो इसके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स में यहां पर नोट कर रहा हूं. तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हेडिंग नहीं डाला पर आप लिख सकते हैं हेडिंग के अंदर कि डिफ्यूजन इज टेकिंग प्लेस ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस प्रोसेस. डिफ्यूजन बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर सकते. अगर मैं अपने शर्ट पर बहुत सारे परफ्यूम लगाकर आया हूं तो ये परफ्यूम की सुगंध सिर्फ 3 या 4 मीटर दूर आ सकती है, उससे ज्यादा दूर नहीं. तो इट इज वन ऑफ द शॉर्ट डिस्टेंस प्रोसेस. डिफ्यूजन इज ऑकर इन लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग. मीन्स डिफ्यूजन प्रोसेस इज इटसेल्फ नॉन लिविंग बट इट कैन ऑल्सो ऑकर इन द लिविंग सेल. प्रोसेस नॉन लिविंग है लेकिन ये लिविंग सेल के अंदर भी हो सकता है. ओके, डिफ्यूजन is one of the slow process और ATP is not required, वो तो मैं यहां लिख दिया, फिर भी यहां पे एक बार और नोट कर देते हैं कि no ATP is required in diffusion. These are the 4 most important characteristic. Now short distance process, short distance क्योंकि हम अब ये टॉपिक प्लांट्स में स्टडी कर रहे हैं तो short distance means diffusion can takes place from cell to cell. एक सेल से दूसरे सेल में प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू मॉलिक्यूल मूव हो सकते हैं. सेकंड, मूवमेंट ऑफ वाटर वेपर आउट ऑफ द लीफ बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. आप जानते हैं कि लीफ जितना वाटर एब्जॉर्ब करता है, जाइलम के थ्रू जितना वाटर लीफ के अंदर आएगा उसमें से 98% वाटर एटमॉस्फेयर में ट्रांसपायर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स. सो दिस ट्रांसपिरेशन आल्सो टेकिंग प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट, diffusion. Okay, so transpiration is also short distance क्योंकि लीफ सरफेस और एटमॉस्फेयर जस्ट उसके बाहर ही प्रेजेंट है. नेक्स्ट थिंग, ट्रांसपोर्टेशन में टेक्स प्लेस विद इन द सेल. एक ही सेल के अंदर साइटोप्लाज्म टू ऑर्गेनेल और ऑर्गेनेल में से मॉलिक्यूल निकलकर साइटोप्लाज्म में आते हैं तो इसे भी शॉर्ट डिस्टेंस प्रोसेस मतलब डिफ्यूजन कह सकते हैं.
it is a non-living process, means diffusion is one of the physical process but may occur in living system. Okay, it is a slow process because energy is not feeded. एनर्जी नहीं लग रही ना पीछे से, इस करके ये स्लो प्रोसेस होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ डिफ्यूजन. अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे विच फैक्टर्स आर अफेक्टिंग ऑन डिफ्यूजन, लाइक टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स. डिफ्यूजन प्रेशर स्टडी करेंगे और डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट स्टडी करेंगे. तब तक के आप लोग ये पूरा टॉपिक अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए. रिमेनिंग पोर्शन विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.